भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। जम्मू के पास भारतीय सेना ने वो पाकिस्तानी पोस्ट और आतंकी लॉन्च पैड तबाह कर दिया है जहां से ड्रोन हमले की साजिश रची गई थी। डिफेंस सूत्रों के मुताबिक यहीं से भारत पर ड्रोन और मिसाइल दागे जा रहे थे। आज सुबह लगातार चौथे दिन पठानकोट और श्रीनगर एयरबेस पर जोरदार धमाके हुए। अमृतसर में भी हालात तनावपूर्ण हैं। इससे पहले शुक्रवार रात 8:30 पर पाकिस्तान ने गुजरात, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और पंजाब के 26 शहरों पर ड्रोन अटैक किए। श्रीनगर एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया गया था। अवंतीपोरा एयरफोर्स स्टेशन पर एक बड़ा धमाका हुआ तो लेकिन वहां ड्रोन अटैक को नाकाम कर दिया गया। इस बीच चंडीगढ़ और अंबाला में भी हवाई हमले की चेतावनी जारी की गई है। तनाव के इस माहौल में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच हालात जितने जल्दी हो सके शांत होने चाहिए। के ਉੱਪਰੋਂ ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਬ ਗਿਰਿਆ। ਉਹ ਬਲਾਸਟ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ। ਬਾਕੀ 2 ਜਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਬਰਨਸ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ सीरियस है। सर इको परिवार दे ने तीनों जी इको फैमिली कौन कौन है सर इसको कुछ ये मैनू नहीं पता। अच्छा सर उम्र कितनी कितनी है उन्होंने सर लगभग उम्र का अंदाजा सर एक यंग मुंडा है 25-30 साल का होना है। बाकी सर की हौसले विच है कोई उन्हां चो लेडीज ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਿਟਿਕਲ ਵਾਲਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਹੋਏਗਾ? देख रहे हैं शायद रेफर भी करना पड़े। साहब बिल्कुल जरा इस समय डॉक्टर No, we need not panic. Everything is fine. आगे injured है. Doctor will take care of that. जी ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ? देखो ये 3 जने की सूचना नहीं था। बाकी हजे कोई और सूचना नहीं ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬਰਨ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਹੈ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ। ਬਾਕੀ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਸਰ? ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਧਮਾਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਬਾਤ ਸੁਣੀ ਹੈ? ਧਮਾਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ। ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਡਰੋਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਡਰੋਨਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਆਹ ਜਿਵੇਂ 21 ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮਸ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ 4 ਤੋਂ 5 ਫਾਇਰ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲਾਈਟਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਆਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ सर हजे तक यही इंजर्ड होने का मामला सामने आया, कोई होर तां नहीं मामला सामने आया? ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। I like to say that it's sad that Pakistan has not learned lessons from the past. Pakistan is not in a position to respond at all because it's a failed state, has been acknowledged for decades by all international agencies and world bodies. So how are they going to respond when they are not ready for it? Which part of the government is ready? Please tell me. The civilian government is not in control. The terrorist forces are reigning supreme. Army chief makes statements which are hardly professional and not related to the reality on the ground situation. How can Pakistan possibly have taken such a foolhardy step? And they provoked India. It's not as if we did anything at all. Can you imagine? It's a very peaceful, safe state of Pahalgam where the accident happened. Why did they have to do it? Provoke, because this is the beginning of the tourist season. So it was totally uncalled for, unnecessary. And since they asked for it, a message has to be sent across to them. Because they keep doing it, they keep needling us. This is not on. We are a responsible nation. So far, we have responded very responsibly, and we have not taken any action which can be found fault with. So, once they have taken the initiative, they have to be told that enough is enough. We are not going to we are not going to accept it anymore. So, the response has been very calculated, very precise. I would say surgical, because we have not. Our targets are specified, and they are not civilian targets at all. These are all terrorist camps which were operating and brainwashing and preparing action and against civilian targets in India. सेना और सैनिकों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं।
इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को सलाम करते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि आतंक और आतंकवादियों को कोई जगह नहीं मिलेगी। हमारा नारा है, हम छेड़ेंगे नहीं और कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं। ये आज हमारी सेना ने और सैनिकों ने कर दिखाया है। बहुत बधाई। पाकिस्तान अभी भी रो रहा है कि आतंकवाद हमारे यहाँ नहीं है। अब देखिए, ये तो दुनिया ने मान लिया है, यूएन तक ने बोल दिया। और यदि आतंकवादी नहीं है तो आतंकवादी आ कहां से रहे, ये भी वो बता दे। अब तो टारगेटेड हमला हुआ और उस हमले को दुनिया ने माना है कि आतंकवादी संगठनों के हेडक्वार्टर पर ही हमला हुआ था। तो अब इसमें तो दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ गया। आज भोपाल के आम नागरिकों ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मां भारती के समक्ष भारत माता चौक पर भारत माता की आरती करके आज संकल्प लिया है कि मां भारती, हमारी सेनाएं जो पराक्रम कर रही हैं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी बहनों पर जो पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद ने सिंदूर मिटाया था, तो मोदी जी ने कहा था कि इसका जवाब देंगे और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान में घुसकर सारे आतंकवादी शिविरों को, चाहे पीओके होगा या पाकिस्तान में जो आतंकवादी शिविर चल रहे थे, उनको नेस्तनाबूद किया है। आज भारत पर जो पाकिस्तान ने आक्रमण करने का प्रयास किया, हमारी सेनाओं ने जो करारा जवाब दिया है अपने पराक्रम के साथ। ऐसे सभी सैनिकों को, भारत की तीनों सेनाओं को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को ताकत मां भारती दे, इसके संकल्प के साथ आज हम सबने मां भारती के समक्ष आरती की है। फोटो आ रही है, साफ दिख रहा है कि पाकिस्तान की सेना, वहां का प्रशासन पूरी तरीके से जो आतंकी मरे हैं उनके जनाजे में जा रहा है। दूसरी तरफ रोना गाता है पाकिस्तान हम आतंकी नहीं, शुद्ध आतंकी देश है। ये शब्द कहना अतिशयोक्ति नहीं है। शुद्ध आतंकी देश है, आतंक के बल पर ही चल रहा है। लेकिन इस बार करारा जवाब मिला है और इस बार आतंकवाद ही समाप्त हो जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ 140 करोड़ जनता और दुनिया आतंकवाद के खिलाफ खड़ी है। अब वो समय आ चुका है जब आतंकवाद को जड़ से खत्म करना है। पाकिस्तान ने दुस्साहस किया, निहत्थे लोगों की हत्या जो पहलगाम में करी, वो भारत की आत्मा पे आक्रमण था और हमारी सेना के पराक्रम और शौर्य का कोई सानी नहीं है। मुझे फख्र होता है भारतीय होते हुए, और 140 करोड़ इस देश के नागरिक, हर मजहब, हर जाति, हर सोच, हर विचारधारा के आज एक हुए हैं। मुझे फख्र है इस बात का। हम सब सेना के साथ हैं, सरकार का पूरा समर्थन कर रहे हैं। और अभी भी जो गतिविधि बॉर्डर पर चल रही है, सरहद के इलाकों में जिस प्रकार की नाकाम कोशिश पाकिस्तान कर रहा है, उसका मुंहतोड़ जवाब हमारी फौजें दे रही हैं। मुझे बड़ा फख्र और गौरव है कि हमारी सेना में इतना मनोबल है और वो मनोबल जनता से आता है। आज यात्रा निकाली है, ये मैं समझता हूं न सिर्फ सैनिकों के प्रति समर्पित है, लेकिन उन सैनिकों के परिवारों के लिए जिनके बेटे, बच्चे, घरवाले हमारी सरहद पर खड़े होकर हमारा जंग लड़ रहे हैं, हमारे लिए मुकाबला कर रहे हैं। आज उनको हम नमन करते हैं और उनको हिम्मत देने के लिए, एकजुटता का संदेश देने के लिए सब लोग, हर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर आज पूरा भारतवर्ष एक खड़ा है। और हम तो चाहते हैं कि विशेष सत्र संसद का बुलाया जाए ताकि पूरे विश्व को पता पड़े कि भारत एकजुटता से एक आवाज में बोल रहा है। और ये जो हमने समर्थन दिया है, ये मैं समझता हूँ आज का नहीं है। ये जब पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था, उस समय सोनिया गांधी जी ने वाजपेयी को दिया था, वाजपेयी जी ने इंदिरा जी को दुर्गा कहा था। तो हमारे आपस में विरोधाभास हो सकते हैं, लेकिन भारत दुनिया के लिए हम एकजुट हैं और हम सब लोगों ने मिलकर प्रण लिया है कि हम भारत की सेना के साथ हैं, उनका मनोबल बढ़ा रहे और चाहे कोई कीमत चुकानी पड़े। लेकिन अब इस आतंकवाद को जड़ से खत्म करना पड़ेगा और पाकिस्तान पूरे दुनिया में एक्सपोज हो चुका है। ओसामा बिन लादेन, अजहर महमूद, तमाम आतंकियों को उन्होंने पनाह दी है और अब समय आ गया कि उनको कीमत चुकानी पड़ेगी। राजस्थान में भी, राजस्थान के कई इलाकों में जो है जैसलमेर में जो देखिए जो सिचुएशन रहा है, जो सिचुएशन है अभी वॉर लाइक सिचुएशन, तो इसी में ये करना था क्योंकि इतने प्लेयर्स हैं, इतने फॉरेन प्लेयर्स हैं, तो बीसीसीआई को यही करना था और आशा करेंगे कि आईपीएल फिर शुरू हो जाए। और अभी तो इम्पोर्टेंट स्टेजेस है आईपीएल का, वो कंप्लीट हो जाएंगे। It's not that the first time that it is happening like this. It has also happened in past in 2021 when there was COVID. So do you think that BCCI has that can complete the IPL? हाँ जरूर, बीसीसीआई विल कंप्लीट द आईपीएल और मैं समझता हूँ कि ये सिचुएशन ज्यादा देर तक नहीं रहेगा।
इंडिया का प्रेशर पाकिस्तान ज़्यादा देर तक सस्टेन कर नहीं पाएगा, तो बीसीसीआई को ये करना ही था। स्पेशली धर्मशाला, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, जयपुर, ये सारे वेन्यूज़ है आईपीएल के। तो जो सिचुएशन कल रात को रहा है, तो उसी हिसाब से ये तो करना ज़रूरी है, और समय के साथ ठीक भी हो जाएगा और मैचेस भी होंगे। Given the state, current scenario, do you see does India sever all ties against Pakistan? That is for the government to decide here. I can't answer all these questions. The government is there, and they will decide. दादा, जिस तरह से कोविड के टाइम पे आप बीसीसीआई के जब वहाँ पे प्रेसिडेंट थे, उस टाइम पे भी इस तरह का एक इमरजेंसी सिचुएशन हुआ था, इसके बाद अब तो क्या लगता है? यार, कोविड बहुत मुश्किल समय था। कोविड में तो अपने घर के लोग मर जा रहे थे। तो कोविड एक अलग ही सिचुएशन था वर्ल्ड में, जो ना किसी ने कभी देखा है, और यही दुआ करेंगे कि आगे ना देखें, प्रार्थना यही करेंगे कि आगे ऐसा सिचुएशन ना हो। उस समय भी आईपीएल हुआ है, कैंसिल होके सितंबर में हुआ है, और बीसीसीआई बहुत एफिशिएंट बॉडी है, बहुत एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन है, ऑफिस बेयरर्स हैं, स्टाफ हैं जो एफिशिएंटली टूर्नामेंट्स करते हैं, तो इसका भी सोल्यूशन निकलेगा। देखते हैं यार, आई कांट आंसर ऑल दोस क्वेश्चंस इन वन गो, बट एज आई सेड बीसीसीआई इज अ वेरी एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन, वो सब संभाल लेंगे। थैंक यू। आज सुबह माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी द्वारा स्थिति की समीक्षा की गई, और कई सारे एयरपोर्ट्स बंद होने के कारण जो वहां स्टैंडर्ड लोग थे उनको वहां से निकालने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने के दिशा निर्देश दिए गए। इस क्रम में आज जम्मू क्षेत्र से, जम्मू, उधमपुर, कटरा, ये सभी जो जम्मू क्षेत्र के स्टेशन हैं, यहां से दिल्ली, नई दिल्ली के लिए 5 स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं, जिसमें से पहली ट्रेन लगभग 10 बजे के आसपास वहां से डिपार्चर हुआ, 10-11 बजे के आसपास डिपार्चर हुआ है। इसके बाद अंतिम ट्रेन रात को 11:55 पर जम्मू तवी से चलेगी। उसी श्रृंखला में एक ट्रेन ये भी है जो अभी स्टेशन पर आई है। इसमें और लोगों के अलावा आईपीएल से जुड़े हुए खिलाड़ी और सारे अधिकारीगण या जो उनके ऑफिशियल्स हैं वो भी हैं। तो ये जो 5 ट्रेन हैं, इनको चलाने का जो माननीय रेल मंत्री जी का निर्देश था, उसके पीछे सबसे बड़ा मंतव्य ये था कि जम्मू और उधर के चंडीगढ़ ऐसे जो भी एयरपोर्ट बंद किए गए हैं, उन एयरपोर्ट बंद होने के कारण, फ्लाइट्स कैंसिल होने के कारण जो लोग वहां फंसे हुए हैं, उन लोगों को किस तरह से सुविधापूर्वक वहां से निकाला जा सके। सभी प्लेयर सर धर्मशाला में थे, कैसे किस स्टेशन से बोर्ड किया गया? ये सभी प्लेयर जालंधर से इस ट्रेन में बोर्ड करे हैं, और ये तीसरी ट्रेन थी। आज 5 ट्रेन में से ये तीसरी ट्रेन थी जिसमें ये आईपीएल के प्लेयर्स और ऑफिशियल्स आ रहे हैं। सर, सभी लोग आ चुके हैं लगभग, जो लोग वहाँ हैं, या और भी स्पेशल ट्रेनें चलाने की तैयारी है? देखिए, हमारे पास रिक उपलब्ध है आवश्यकता अनुसार। जैसी वहाँ लोकल अथॉरिटीज से हम टच में हैं, और हमारे जो उच्चाधिकारी हैं वो लगातार स्थिति पर नजर बनाए रखे हैं। तो जैसी आवश्यकता होगी, रेक हमारे पास उपलब्ध है, और स्पेशल ट्रेन का भी परिचालन किया जाएगा। देखिए, इस बारे में पूरी जानकारी मुझे नहीं है। इतना मुझे पता है कि इस ट्रेन में आईपीएल से संबंधित खिलाड़ी